السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ، تو اچھا لگے گا تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کومنٹ کرنا، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھیں گے، تو پسند آئے گا تو لائک۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے کرم سے ایک اور اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو کس طرح قبولیت کا شرف بخشا اور کس طرح کے حالات و واقعات درپیش رہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل سے دیکھیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 85 میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں، سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورہ الانعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ الانبیاء کی 99 سے 90 تک کی آیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے بھی ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا، جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے تھے جو کہ قرآن مجید میں ہے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے۔ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں بیان ہے، اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے،
तो तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। लेकिन जब उनके यहां बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़र भी। काबिल सद एहतराम नाजरीन, हसरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं कि नजर से मकसूद तो तेरी रजा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था, और ये काम मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू इसे जानता ही है। शौहर हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की विलादत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 36 का तर्जुमा पेश खिदमत है, ऐ अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के छूने से महफूज रखा। वालदा अपनी नजर पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम को लेकर बैतुल मक़दस पहुंची। वहां मस्जिद के मजावर खादिम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, इस बच्ची के मुताल्लिक नजर मान चुकी हूं, अब ये बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूंकि वो हजरत इमरान की बेटी थी, जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नीज खाला बमंजिला माँ के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज्यादा है। तहम दीगर अफराद इस पर राजी ना हुए तो कुरा अंदाजी का फैसला किया गया, जिस पर तीनों बार हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम ही का कुरा निकला। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त बना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ौक़ व शौक से उनकी परवरिश शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रखा, लेकिन जब वो जरा समझदार हो गई तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को वो अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नजर से बाहर से कुफल यानी ताला लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के निहायत आला किस्म के फल और मेवा जात मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 36 में कुछ इस अंदाज से बयान किया है, ऐ मरियम, ये रोजी तुम्हारे पास कहां से आती है? वो बोली, अल्लाह के यहां से आती है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता करता है। ये एक लिहाज से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की करामत थी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया ईशा बांझ थी, जिसकी वजह से वो बे औलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और जाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी खत्म हो चुके थे। लेकिन जब हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी निहायत आला किस्म के फल देखे तो आप अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हजूर दुआ मांगने की हिम्मत पैदा कर दी, और फिर बे इख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 38, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलादे साले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और मेरे नेक बंदे ज़िक्रिया को बेटे की बशारत दे दो। नाज़रीन ग्रामी, इरशाद बारी है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो अल्लाह के फैज यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत ना रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। कुरान करीम के 16वें पारे की सूरह मरियम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से विरासत अता फरमा,
जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जाननशीन, और मेरे रब तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिक्रिया, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने इससे पहले उसका हमनाम भी किसी को नहीं किया। जिक्रिया कहने लगे, मेरे रब, मेरे हां लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौफ को पहुंच चुका हूं। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकोगे। अब जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सूरह मरियम में है कि तुम सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ़ व कमजोरी का जिक्र किया। यही वजह है कि इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ौफ़ व बदहाली और हाजतमंदी का जिक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अकरब है। उलमाए कराम ने फरमाया कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का जिक्र करना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तहब है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी मबूस फरमाए, उन पर अपनी रहमतें और नेमतें भी नाजिल फरमाता रहा। लेकिन ये वो नाशुक्री कौम है कि जो बार बार नाफरमानियां करती रही और शिर्क में मुब्तिला होकर अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम ढाती रही, यहां तक कि उन्हें शहीद करने से भी दरेग नहीं किया। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें तो उन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। रूहुल मुआनी में बरिवायत इब्ने हाकिम इस आयत की तफसीर खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि बनी इसराइल ने एक वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर डाला। जब उनको समझाने के लिए 100 बुजुर्ग खड़े हुए तो उनका भी काम तमाम कर दिया। बयानुल कुरान। बनी इसराइल ने पहले हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबई उम्र पूरी करके इंतकाल फरमाया, जबकि बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि उन्हें बनी इसराइल ने शहीद किया। वहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से और एक दरख्त के खला में दाखिल हो गए तो कौम ने वहां पहुंचकर दरख्त पर आरा चढ़ा दिया। वल्लाहु इल्म। उस वक्त हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल से जायद थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का मजार शाम के शहर हलब की मस्जिद जामे जिक्रिया में है। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जल्द ही एक नए सिलसिले के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।